آپ کو یہ ادارہ یہ تنظیم بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہمیشہ سے ناانصافی کا شکار رہی ہیں. لڑکی جب اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے کہا جاتا ہے تم ہمارے پاس پرائی امانت ہو. تمہارا اصل گھر ماں باپ کا گھر نہیں بلکہ شوہر کا گھر ہے. وہ بیچاری اپنی آنکھوں میں خواب سجا کے تمام پرانے رشتے ناطے بھلا کے اپنے شوہر کے گھر میں جاتی ہے اپنا گھر سمجھ کے. تو ساس کہتی ہے بیوی ذرا دھیان سے رہنا, یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں بلکہ میرے بیٹے کا گھر ہے. اولاد جوان ہو جائے گھر پہ قبضہ اولاد کر لیتی ہے. عورت بیچاری ہر مکان کو سجاتی ہے کہ شاید یہ اس کا گھر ہے, لیکن اس کا کوئی گھر نہیں بننے دیتے تم لوگ. اور ویسے بھی پتھروں کے زمانے سے جب انسان غاروں میں سوتا تھا تب بھی عورت جاگتی تھی, اور آج بھی صرف عورت ہی جاگتی ہے. عورت جاگ رہی ہے تو مرد کہاں؟ مرد گھر سے باہر عیاشیوں میں مصروف ہے. عورت بیچاری ساری ساری رات اس کے انتظار میں جاگتی ہے. مرد گھر سے باہر کیوں؟ اس کی ریزن ہے. مرد گھر سے باہر اس لیے چلا جاتا ہے کہ اسے گھر کے اندر پراپر رسپیکٹ نہیں ملتی, رسپانس نہیں ملتا, اسے پیسے کمانے والی ایک مشین سمجھا جاتا ہے. مرد گھر کے اندر آتا ہے اسے سکون نہیں ملتا, دو وقت کی روٹی وہ سکون سے کھا نہیں سکتا, بچوں کی تعلیم تربیت ٹھیک نہیں ہوتی, گھر میں صفائی نہیں ہوتی, اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر بیوی کی برائیاں, بیوی کے پاس بیٹھ کر ماں کی برائیاں, یہ ساری باتیں اسے گھر سے باہر جانے پہ مجبور کرتی ہے. اسے گھر کے باہر بھیجنے والی بھی عورت ہے اور گھر کے اندر بلانے والی بھی عورت. یہ جتنے پرابلم آپ نے بیچارے معصوم مرد کے بیان کیے ہیں نا, آپ نے مرد کو ایک ننھا فرشتہ پینٹ کر دیا یہاں پہ, ان سب کا سامنا عورت بھی کرتی ہے. لیکن عورت اپنی ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کرتی, اپنی ذمہ داریوں سے دامن چھڑانے کے لیے باہر جھوٹے سہارے تلاش نہیں کرتی ہے. تم لوگ باہر جاتے ہو کیونکہ تم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نئی ادائیں, نئی مسکراہٹیں, نئے چہرے. تو جو نئی چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ بھی لے لیتے, نیا زیور, نیا بنگلہ, نئے کپڑے, نیا میک اپ, نئی گاڑی. اگر ہمیں ایک نئی مسکراہٹ چاہیے اور وہ ہم لے لیتے ہیں تو کیا قیامت ہو جاتی ہے؟ ہم بھی انسان ہیں, کوئی کھوتے میں پتر تو نہیں نا. ویری گڈ. کس قدر آسانی سے آپ نے گھر بیٹھی عورت کی توہین کی ہے, کس قدر سکون سے آپ نے کہہ دیا چونکہ آپ کی باوفا بیوی کی مسکراہٹ پرانی ہو گئی تھی اس لیے آپ باہر دوسری عورتوں کے پاس نئی مسکراہٹ کی تلاش میں چلے گئے. میں پوچھتی ہوں کہ جو عورت گھر میں 8 بچوں کو سنبھالتی ہے, تم لوگوں کی ماں بہنوں کی ٹکے ٹکے کی باتیں سنتی ہے, تم مردوں کی منحوس شکلیں برداشت کرتی ہے. اگر وہ عورت بھی یہی کہے کہ میاں تمہاری مسکراہٹ پرانی ہو چکی, میں باہر کسی دوسرے مرد کے پاس نئی مسکراہٹ کی تلاش میں جا رہی ہوں, تم مردوں کی ماں نہ مر جائے. تم عورتوں کا باپ نہ مر جائے. کی منحوس شکلوں کو برداشت کرتی ہے. تو کیا پھر صرف مردوں کی شکلیں منحوس ہوتی ہے؟ ایک سے ایک منحوس شکل کی عورت بھی دنیا میں ہے. یہ ہم مردوں کا حوصلہ ہے کہ بغیر میک اپ کے صبح صبح دھلا ہوا منہ دیکھتے ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان کی طاقت نہ ہو تو کب کے مر گئے ہوتے. ان عورتوں کے اپنے بچے ماں کو دیکھ کے صبح چیخے مار کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہماری امی کہاں ہے, ہماری امی کہاں ہے, آنٹی چڑیل ہماری امی کہاں ہے. شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے بہن یا میری بیگم کی کہاں گئی. آپ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر چلی جائے گی نئی مسکراہٹ کی تلاش میں. کیسے جائے گی وہ بھائی؟ وہ تو جا نہیں سکتی. عورت تو پابند ہے, اسے تو مقید ہے, اسے تو پیدا کیا گیا ہے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کے لیے. وہ تو گھر میں رہے گی, اس کا کام ہے اچھی نسل معاشرے کو دینا, انسانوں کو جنم دینا. جبکہ مرد کو باری تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو اسے اوور لوڈ کیا, اسے بھیجا اسی کام کے لیے کہ جا شادیاں کر اور مسلمانوں کی تعداد بڑھا. میں تجھ سے خوش ہوں, جا میرے بیٹے جا جا. انسان نے دنیا میں آ کر کے اللہ کے فرمان کو پورا کیا. 4 شادی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی, عورت کو نہیں دی. عورت کو کہا تم گھر میں رہو, مرد کو کہا اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے, گھر سے باہر نکلے اسے سزا دو. غلط بات کر رہے ہیں آپ مسٹر. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ 4 شادیوں کی مردوں کو اجازت ہے, تو یہ تم مردوں کو کوئی اپرچونٹی نہیں دی گئی ہے. یہاں پہ بھی ایک لاجک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ عورت میں صبر ہے, قناعت ہے. وہ کسی ایک مرد کے نام پہ ساری زندگی گزار سکتی ہے, نہ صرف اس کے جیتے جی بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے بچوں کو, اس کی عزت کو سنبھال کے اس کی چار دیواری میں بیٹھی رہے گی. لیکن مرد کی فطرت کو اللہ تعالیٰ جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں نے یہ جو مرد مخلوق تخلیق کر دی ہے, اس کا ذہنی کیڑا اس کو چین سے نہیں رہنے دے گا. یہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر دوسری عورتوں کے پاس جائے گا اور چولے مارے گا. صرف اسلام نے تم مردوں کو گناہ سے بچانے کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, جو تم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. نہ 4 شادی کا مقصد کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اکنامیکل پرابلم,
4 शादी एक बड़ा हिसाब किताब है, क्योंकि दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा है, मर्द कम है। औरतें ज्यादा है, मर्द कम है। औरतें मरती भी कम। आप कोई जनाजा उठा के देख ले, कौन है? सिद्दीक है, बशीर है, गोगा है, परवेज है, कभी नहीं पता चलेगा कि इसमें हमीदा है, जमीला है, हबीबा है, जुबैदा है। हमेशा मर्द मरेगा। तो 4 शादी का मकसद क्या हुआ कि औरतों की तादाद ज्यादा है, मर्द कम है। 4 शादी की इजाजत इसलिए दी कि तुम सारी औरतों की शादी हो जाए तो शिकायत ना रहे। चले आप ही की बात को सेकंड करते हैं। आप अभी फरमा रहे हैं कि तुम मर्दों को 4 शादियों की इजाजत हम बेचारी औरतों की तादाद बैलेंस करने के लिए दी गई। आपको खुश रखे। लेकिन किन मर्दों को मिस्टर? हम मर्दों उन मर्द नहीं, हर मर्द को नहीं, सिर्फ उस मर्द को जो 4 शादियां अफोर्ड कर सकता हो। ना ये कि आप अपनी पहली बीवी और बच्चों के मुंह से निवाला छीने और बाहर बाजारी औरतों के मुंह में जाके उनको डालें, उनकी अदाओं पे निसार करें। आप 4 शादियों की बात करते हो। यहाँ हमारे मुआशरे का जो सेटअप है ना, यहाँ पे जो दूसरी शादी भी करता है ना, वो भी उसको पब्लिक के सामने और नहीं करता। वो दूसरी बीवी को कहता है बीबी कंप्रोमाइज करो, पहली को कहता है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। हमारे मुआशरे में कोई भी माई कलाल दूसरी शादी इस्लामी नुक्ता नजर से नहीं करता। यहाँ दूसरी शादी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ठरक है। सवाल यह पैदा होता है कि ये ठरक हमें मिलती कहां से है? सड़क पर औरत की ठड़क में ठरक। औरत 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 ही है सारी प्रॉब्लम की जड़। अगर हम किसी औरत से कहते हैं कि मुझसे शादी करो और उसे पता होता है कि ये शादीशुदा है, वो क्यों करती है? वो ये क्यों नहीं कहती औरत कि मैं शादी नहीं करूंगी, तुम पहले शादीशुदा हो और जिससे तुम्हारी शादी हुई हुई है वो भी एक औरत है, मेरी बहन है, मैं अपनी बहन का घर बर्बाद क्यों करूं? वो कहती है अभी करूंगी, अभी चलो। वो उसी वक्त शादी की हामी भरती है। औरत औरत का घर बर्बाद कर रही है, कोई हिजड़े नहीं कर रहे। मर्द खुद अपने घर को बर्बाद करता है मिस्टर वकील, जो दूसरी औरतों के सामने जाके अपनी पहली बीवी की बुराइयां करता है। कहता है कि मेरी शादी मेरी पसंद से नहीं हुई है, अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे जब मेरा निकाह कर दिया गया था। खुदा की कसम उस औरत से मेरी आज तक अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकी है। उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में तुम लोग 8 बच्चों की मां बना देते उस औरत को। ये भी हमारा फॉल्ट है। तो और किसका फॉल्ट है? दूसरी बात आपकी कि आप कहते हैं कि आपको ठरक औरतों की फड़क से मिलती है। मानती हूँ कि कुछ औरतें अपने आप को ये इश्तिहार बना के निकलती हैं कि आओ हमें छेड़ो, लेकिन तुम लोग तो बुर्का पहनी औरतों को भी माफ नहीं करते, बल्कि बुर्का पहनी औरत के ज्यादा दूर तक पीछे जाओगे। 3 मील तक बुर्का पहनी औरत का पीछा करोगे, चाहे अगले चौक पे जाके तुम लोगों की सगी मां निकल आए। और वैसे भी पाकिस्तानी मर्द के बारे में किसी सियाने ने कहा, खूबसूरत बात की है कि पाकिस्तानी मर्द का ज़हन ऐसा प्यारा ज़हन है, आप किसी झाड़ी के ऊपर कपड़ा डाल दें, ये माई कलर सारा दिन वहां खड़ा रहेगा, शायद इसमें हरकत हो जाए। सही बात है, सही बात है। खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्या इस कपड़े के नीचे से कोई लड़की निकल आए अगर, तो लड़की को बंदा समझाया कि यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर जाओ। समझाने के लिए, उसे रहबरी करने के लिए, उसे तंबीह करने के लिए कि जा बीवी अपने घर जा, माँ बाप की इज्जत को ऐसे न रोल। और रह गया सवाल बुर्का पोश औरतों के पीछे जाने का, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। बुर्का पहनी हुई औरत को देखकर इस सदी में, इस 1997 में, जब औरत ने आग की शर्म को निकाल के फेंक दिया, चादर को खुद फेंक दिया, घर की 4 दीवारी से निकल के सड़क पर आ गई, जब औरत ने खुद फैशन को अपना लिया, इस मौके पर जब हम किसी औरत को बुर्के में देखते हैं 14वीं सदी में, अकल हैरान होती है, दिमाग कहता है इसके पीछे चल, इस अजीम औरत का चेहरा देख और सवाब हासिल कर। खोचलपन, यानी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना, कोई ना कोई लॉजिक निकाल लेना है अपना ठरक पूरा करने के लिए। इसमें कौन सा ठरक था भाई? ठरक ही है, आज तक कभी किसी औरत ने किसी मर्द का पीछा नहीं किया, हमेशा तुम मर्द की औरतों के पीछे ख्वार होते, ये तो बताओ। ये तो सिस्टम है।
दिस इज नेचर। औरत के पास इतनी फुर्सत ही नहीं। वो तो बेचारी जा रही है, उसके पीछे पूरा माशरा जा रहा है। जो औरत जा रही है उसके पीछे माशरा जा रहा है, तो इसमें औरत को बेचारे को रास्तों का भी नहीं पता होता। वो तो अपने घर जा रही है, मर्द को रास्ते पता है, इधर से छोड़ा उधर से पकड़ लिया, इस गली से गया उधर से पकड़ लिया। ये मोहल्ले बैठे हुए हैं, मोहल्ले मोहल्ले चलता काम। तो ये तो मर्द की फितरत है। तो माने ना कि मर्द मुआशरे को खराब कर रहा है। नहीं, खराबी तो भाई औरत है, मर्द तो पीछे है। हाँ। एक बात और जी, आपका मैंने बोर्ड पढ़ा ऑफिस का, उसमें लिखा हुआ कि आप तलाक के लिए हमसे रुजू करें। आप चाहती तो उसको सुलह घर भी बना सकती थी, आपने उसका इदारे का नाम तलाक घर क्यों रखा? आप गलत एलिगेशन लगा रहे हैं मिस्टर। पता नहीं किस इदारे का बोर्ड पढ़ के आ गए। हमारा इदारा तलाक घर नहीं है। हाँ, आप उसे पनाह घर जरूर कह सकते हैं। हम पनाह देते हैं मुआशरे की ठुकराई औरतों को। दूसरी बात रह गई आपकी कि औरत तलाक लेती है। इसमें भी एक बात जहन में रखिए कि कोई भी औरत जो है वो खुशी से अपने माथे पे ये कलंक नहीं लगाती है। उससे तुम लोगों के घरों से इस कदर टेंशनें, अजियतें मिलती हैं कि वो बेचारी इस वादे को तोड़ने पे मजबूर हो जाती है जिसने अपने अल्लाह रसूल के साथ किया होता है कि मर के इस घर से निकलूंगी। तुम लोगों की नाइंसाफियां, बददियानतियां उसे मजबूर करती हैं कि वो जीते जी अपने गले में ये जिल्लत का तोक पहने। अच्छा, आपकी शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तलाक ले ली? क्यों जी? तो फिर आप क्यों रह रही हैं ऐसे जालिम माशरे में, जालिम मर्दों के साथ? मेरे मियाँ बहुत अच्छे शौहर हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। अच्छा, तो ये औरतों को क्या गिला होता है जो ये घरों से चली जाती हैं, घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के? प्रॉब्लम है, लेकिन एक छोटी सी मिसाल दूंगी आपको। अक्सर आप लोग अखबार में पढ़ते हैं कि किसी घर में मिट्टी के तेल का चूल्हा फटा, जल के मर गई एक बहू, यानी पराई अमानत किसी की लाई हुई बेटी। मैं पूछती हूँ कि उस घर में और औरतें भी होती हैं, सास भी होती है, नंदे भी होती हैं। चूल्हा सिर्फ बेगानी अमानत के लिए क्यों फटता है? अपनी पैदा की हुई बेटी उसमें जल के क्यों नहीं मरती है? सास को आग क्यों नहीं लगती? खामद जल के क्यों नहीं मर जाता? ये तो आप चूल्हे से पूछे। असल में चूल्हे को भी औरतों पे बड़ा गुस्सा होता है। ये औरतें दो चीजों को बहुत आग लगाती हैं, एक खामंद को, एक चूल्हे। चूल्हा जल जल के सोचता कि या अल्लाह मुझे फाड़ दे, मैं ये औरत तो लेके मरूं साथ में। ये आपकी वजह। चलें, जो औरतें आपको तीलियां लगाती हैं, चिल्लाती हैं, सताती हैं, आप उस आग को बुझाने के लिए बाहर दूसरी औरतों की शक्ल में फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन जो औरत बेचारी आप लोगों की लगाई हुई आग में जलती है, आप लोगों की बहनों की आग में जलती है तानों में, उसके सब्र की दाद देना मिस्टर। औरत क्या क्या संभाले, क्या क्या संभाले? औरत अपना घर संभाले, अपने खानदान को संभाले, तुम मर्दों की इज्जत को संभाले, किस किस चीज को संभाले? औरत सिर्फ जबान संभाले, बाकी सब सेट हो। वेरी गुड भाई, औरत अपनी जबान को संभाले। मैं पूछती हूँ कि तुम मर्द जब घर में जाते हो तो कौन सी अपने माथे पे तुम लोगों ने बड़ा फूल सजाए होते हैं, होंठों के ऊपर बड़े तुम लोगों की मुस्कुराहटें होती हैं, हाथों में बुके लेके जाते हो? तुम लोगों की सारी मुस्कुराहटें तो अपनी सेक्रेटरी के लिए या मोहल्ले की औरतों के लिए होती हैं। अपनी बीवी के लिए सिर्फ तुम लोगों के पास ताने और टेंशन होती हैं। एक बात बताइए जी पूछिए। ये हम मर्द जो हैं, हाँ जी, आपके ख्याल में ये ऐसी मामूली सी चीज है? आप अपने मुंह से इतराफ कर रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ? ये मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी इज्जत दी है अच्छा, कि उसको कहा कि तू 4-4 शादियां कर, मैं तुझसे खुश हूं, ऐ मेरे बंदे जा मुसलमानों की तादाद बढ़ा। कहा ठीक है, कहा तुझसे खुश हुआ, तेरे अजर को देखा, तेरी मेहनत को देखा, तुझे अजर दूंगा, ऊपर आ तुझे हूरे दूंगा। आपको कोई वादा किया? फरमा रहे हैं कि आप मर्दों को वादा किया गया हूरों का। जी हमें कहा हूरे, हमने कहा ठीक है भी ले लेंगे। अच्छा, इसमें भी आप लोगों को कोई अफजलियत नहीं दी गई है। क्यों? बल्कि अल्लाह ताला को ये मालूम है कि औरत जो है एक बेलौस खिदमतगार है। वो अपने माँ बाप की खिदमत करती है बगैर किसी लालच के, अपने खामद के नाज नखरे सहती है बगैर किसी लालच के, अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है बगैर किसी लालच के। लेकिन मर्द की लालची फितरत के पेश नजर उसे दुनिया आखिरत दोनों में लालच दिया गया कि शायद इस तरह से तुम लोग अपने आप को सुधार लो, पर कितना। दूसरा, हर मर्द जो है ना ये अपने माथे पे जन्नत लिखवा के नहीं आया हुआ, बड़ा बड़ा दोस्त ही मर्द पड़ा हुआ है मिस्टर। तो
चलो पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो दफा। समझे आप? जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि नेक जो मर्द हैं उन्हीं को हूरें मिलेंगी, जन्नत नसीब होगी, इसी तरह से वो नेक औरतें जो अपनी इस्मतों की हिफाजत करती हैं और अपने तमाम फराइज़ मनसबी दयानतदारी से निभाती हैं, उनके लिए वादा है कि वो जब आएंगी ना, वो जो आपके सामने हूरें पेश होंगी तो वो वही नेक बीबियां हूरों के रूप में आएंगी। माइंड इट। अच्छा जी, मतलब जो औरतें हमारे पास यहाँ हैं वही हमें हूरे बना के दे देंगे? जन्नत में जाने का फायदा क्या होगा? मेरा ख्याल है तो दोजख में चला जाए बंदा, कम से कम वैरायटी तो मिलेगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इतने दोजख और जन्नत के चक्करों में क्यों पड़े हुए हैं भाई? मैं क्या मरने के बाद आपका क्या ख्याल है, उकाड़े जाऊंगा? आप मरने के बाद उकाड़े छोड़ जापान चले जाइए, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि जिस पेशे से आपका ताल्लुक है ना मिस्टर, आप इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट दोजख की फ्लाइट है। अच्छा फिर तो आपसे काफी मुलाकातें रहेंगी हमारी। नहीं, ये आपकी मुन्नी मुन्नी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी।